Okay, sir. Okay. Good morning, everyone. I, Jatin Kumar Jaiswal, with my colleague Miss Pooja Kumari, have a great honor and privilege to welcome you all to this enlightening webinar on the theme Financial Empowerment Through Wealth Creation, organized by the PG Department of Commerce, Magad University, Bodh Gaya, and Indian Accounting Association, IAA Patna branch in collaboration with Association of Mutual Fund in India, AMFI. It is my pleasure to acknowledge the significant contribution of the Indian Accounting Association, Patna branch, a valued partner in this initiative. Since its establishment in 2011 by Dr. Dharen Kumar Pandey sir, the branch has rapidly grown and fostering a dynamic community of accounting professionals and scholars through its continuous effort to facilitate collaboration, share knowledge, and promote research. Since its inception, Indian Accounting Association Patna branch has seen a remarkable growth in the membership, and engagement with a commitment to excellence has played a pivotal role in advancing the accounting profession in the region, and its success continues to inspire and connect professionals day by day. I would also like to express our sincere gratitude to the Association of Mutual Fund in India, AMFI, for their invaluable partnership in this initiative. As a leading industrial body, AMFI has played a pivotal role in promoting mutual fund investment and enhancing financial literacy across the country. Their continuous effort to empower individuals with the knowledge and tools to make informed financial decisions are truly commendable. We are very thankful for their support and collaboration. Now, I would like to invite our organizing secretary of this webinar, Dr. Vinita Kumari ma'am, to continue with the proceedings and deliver inaugural speech. Over to you, ma'am. Thank you, Jatin. Am I visible and audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. So, respected head of the department, esteemed speaker, my team, participants, and dear students. A very good morning to all of you. I, Dr. Geeta Kumari, Organizing Secretary, feeling honored and privileged to welcome you all to this national webinar on wealth creation through financial planning. This webinar is being organized by the PG Department of Commerce, Magad University, Bodh Gaya, in collaboration with the Indian Accounting Association, IAA Patna branch, and the Association of Mutual Funds of India, AMFI. So financial planning is one of the most powerful tools for building personal and family wealth. In today's ever-evolving economic landscape, the need for effective financial planning has never been more critical because we live through periods of uncertainty, inflation, and rapid changes in market dynamics. Wealth creation requires a strategic approach that is rooted in knowledge, discipline, and long-term vision. And this is precisely why today's topic is both timely and significant. We are fortunate to have expert today who will be guiding us throughout the session today. His insights will shed light on the importance of financial planning, the tools available to us, and how we can leverage these resources to create and grow wealth sustainably. In this session, we will understand the basics of financial planning, whether it is about setting financial goals, budgeting, or understanding various investment vehicles. Today's session will cover a wide spectrum of topics that are relevant to both individuals and businesses looking to secure their financial future. The Association of Mutual Funds of India, AMFI, plays a crucial role in promoting the mutual fund industry in India. They have been instrumental in educating the public about the importance of mutual funds, investments, and their role in wealth creation. We are extremely grateful to AMFI for their support in making this webinar a reality. Let me take this opportunity to thank the speaker and expert for taking time out of his busy schedules to share his valuable knowledge with us. His expertise will undoubtedly enrich our understanding of wealth creation and its intricacies. I encourage the participant to take full advantage of this webinar. Do not hesitate to ask questions, share your thoughts, and engage with your expert.
It is only through such exchanges that we can deepen our knowledge and broaden our perspectives. So finally, I wish you all a fruitful and enriching experience through the webinar. May today's session help you chart a path towards financial prosperity through informed and strategic financial planning. Thank you so much, and over to you, Jatin. Pooja, please continue. Thank you, ma'am, for providing us an inaugural speech. Your words on financial empowerment and wealth creation have set the tone for today's webinar and inspired us all to engage meaningfully with the topic of financial empowerment. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite the head and Dean of PG Department of Commerce, Magad University, Bodh Gaya, and conveyor of today's webinar, Professor Anwar Khurshid Khan, sir, to deliver the welcome address. Over to you, sir. Yes, sir. Hello. Am I visible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. You are visible, audible, both. Okay. Good morning, everyone. Good morning. It is sir. my great pleasure and honor to welcome all of you to this enriching national webinar on the theme Financial Empowerment Through Wealth Creation, organized by PG Department of Commerce, Magad University, Bodh Gaya, in collaboration with the Indian Accounting Association, Patna branch, and the Association of Mutual Fund of India. I extend a very warm welcome to our esteemed keynote speaker, Mr. Suryakant Sharma, a senior consultant at AMFI and a former deputy general manager at SEBI. With his vast experience and expertise in the financial sector, we are eager to hear the valuable insights he will share with us today. Sir, we are deeply honored to have you with us. A very special welcome to our organizing secretary, Dr. Vinita Kumari, Assistant Professor at the PG Department of Commerce, Magad University, Bodh Gaya, and Treasurer of Indian Accounting Association, Patna branch. Dr. Vinita has played pivotal role in the arrangement and management of this webinar, and we are grateful for her leadership and effort. I would also like to welcome the entire organizing team, Dr. Shweta Goel, Assistant Professor at PG Department of Commerce, Magad University, Bodh Gaya, Dr. Panna Lal, Dr. Pankaj Kumar Mahto for their contribution. Next, I would like to extend my heartfelt thanks to coordinator of this webinar, Mr. Jatin Kumar Jaiswal and Ms. Pooja Kumari of Central University, South Bihar, Gaya, for a smooth and energetic commencement of the webinar, and also for their continuous support and hard work in the organizing this event to make it success. A warm and special welcome to Dr. Dharen Kumar Pandey, Assistant Professor at IIM Sambalpur, and the Secretary of Indian Accounting Association, Patna branch, whose continuous support has been essential in ensuring the success of this webinar. Your assistance and encouragement have made this event possible. Finally, I extend a warm welcome to all the participants, students. Your presence and engagement in this important discussion on financial empowerment and wealth creation are what make this webinar truly meaningful. I also welcome the non-teaching staff of PG Department of Commerce, Magad University, Bodh Gaya, who have made things convenient. I sincerely hope that today's discussion will provide valuable insights into financial planning and wealth creation, empowering all us to make better financial decisions for a secure future. Once again, I thank each one of you for being part of this special event and look forward to a fruitful and engaging session.
Thank you. Thank you Over so to much. Thank you so much, sir, for the warm and gracious welcome address. Without further delay, let's proceed with our session. It is my honor to introduce today's keynote speaker, Mr. Suryakant Sharma sir. Mr. Sharma holds postgraduate degree in Commerce and Law with a specialization in corporate laws. He is also a chartered associate of the Indian Institute of Banking and Finance. With over 35 years of experience in banking, finance, and security market, Mr. Sharma has had an illustrious career, serving initially in a leading financial institution, then in the Department of Financial Services, Ministry of Finance comes under Government of India, and finally at SEBI. Mr. Sharma joined Securities and Exchange Board of India SEBI in 2003 and served for over 16 years across various departments. Among his notable assignments, he led the Office of Investor Awareness and Education in SEBI's Northern Region for more than 5 years. During this period, over 15,000 financial literacy and investor awareness programs were conducted, and Mr. Sharma personally addressed more than 600 programs as a guest speaker. After retiring from SEBI in 2019, Mr. Sharma joined the Association of Mutual Fund in India (AMFI) as a senior consultant. In this role, he has been instrumental in spreading financial literacy and investor awareness across countries amongst citizens. Since May 2019, Mr. Sharma has interacted with lakhs of investors and potential investors through more than 1,000 investor awareness programs, both online and in person, conducted at reputed government organizations, research institutions, leading educational and professional institutions, corporates, startups, women-centric NGOs, and many more. With decade of experience in financial sector, Mr. Sharma will definitely provide us with invaluable insights that will inspire and guide us towards financial planning and wealth creation. Sir, now the platform is yours. Please enlighten us with your gracious speech. Over to you, sir. Thank you, Mr. Jatin. Am I audible? Yes, sir, you are audible and visible both. Yes. Thank you very much to all of you, particularly those the core organizers of this program, Dr. Vinita Kumari, Dr. Dhiren, Jatin ji, Pooja ji, and all other young faculty members. I'm very happy to see young faculty members here and the students also, because you are the future of the country. You will still clear what we have not done, you will have to do for the betterment of the country. 2-3 things I wish to mention to you before I start my discourse. This program is from Association of Mutual Funds in India, which is an apex body of mutual funds in India. But Jatinji, it is not a marketing event or a promotional event of mutual funds. I want to make it very clear right at the outset. This is purely an investor awareness program being done under the aegis of SEBI and Government of India. Because now SEBI and being the regulator of securities market and the Government of India feels that now the time has come when every individual, every citizen has to be financially literate so that they can take their financial decision in a better way. और अगर धीरेन जी मुझे अगर अनुमति दें तो मैं हिंदी में बात करना चाहूंगा। आप पटना से हैं, बिहार से हैं, अपनी भाषा में बात करें तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। बिल्कुल सर। और आप भी कम से कम हिंदी जानते ही होंगे सारे लोग, और हिंदी में ही हम घर में बात करते हैं, तो मैं ज्यादा हिंदी में ही बात करूंगा। मैं नॉर्थ में और ईस्टर्न यूपी में जहां हिंदी बोली जाती है वहां हिंदी में ही बात करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि भाषा का बड़ा महत्व है संवाद में। धीरेन जी आप महसूस करेंगे जी और अपनी भाषा में बात की जाए तो वो ज्यादा अच्छी तरह हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो मैं 2-3 बातें आज के विषय के बारे में, पहली बात मैंने कह दी कि ये प्रोग्राम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है। दूसरी बात, ये प्रोग्राम केवल आपके लिए है, आपके लिए मतलब जो यहां ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा, समय कम है एक्चुअली मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मेरे विषय के बाद में आपकी तरफ से प्रश्न जरूर आए। उससे लगता है कि या तो आपने इंटरेस्ट लिया है प्लस आपकी जिज्ञासा भी है कुछ विषय को जानने के लिए।
तो मैं सब, और आज के विषय को मैं बड़े साधारण रूप में रखना चाहूंगा धीरेन्द्र जी। मैं कोई यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ। आप सब गुरुजन हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं विषय के बारे में भी। दो चार बातें शायद मुझे ज्यादा आती है, वो मैं आपको शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो पहली बात, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, धीरेन्द्र जी आप क्या मानते हैं, दो चीजें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? धीरेन्द्र जी अगर अनम्यूट करेंगे अपने आप को। जी हाँ, सर, हमारा तो ये मानना है कि दो चीजें महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। एक हमारा जो फाइनेंसेस है और दूसरा हमारा स्वास्थ्य। क्योंकि हम लोग सुनते आए हेल्थ इज वेल्थ, सो हेल्थ एंड वेल्थ बोथ आर इम्पोर्टेंट। आपने थोड़ी प्रायोरिटी बदलती, मेरी प्रायोरिटी थोड़ी सी अलग है। पहला स्वास्थ्य है। अच्छा। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, हमेशा रखिए, जीवन पर्यंत रखिए। अगर आप स्वस्थ हैं धीरेन्द्र जी, तो अपने पैसे का आप एंजॉयमेंट कर पाएंगे, अपने पैसे का उपयोग कर पाएंगे। मैं दुरुपयोग की बात नहीं कर रहा हूं, उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर स्वस्थ नहीं है तो उस पैसे का मायने क्या है? इसलिए मैं आप सभी से सबसे पहले निवेदन करूंगा, बी हेल्थी, स्वस्थ रहिए और उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। पर निश्चित तौर पर उसके बाद में आपकी बात सही है, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे की महिमा हम सब जानते हैं, पैसे का महत्व को हम सब जानते हैं, सुबह शाम हम महसूस करते हैं। इसलिए पैसे के महत्व को शुरू से समझिए। समझते सब हैं, लेकिन एक बार अगर समय निकल गया धीरेन्द्र जी, तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं विशेष तौर पर आपके विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, पैसे के महत्व को समझिए। हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं जिंदगी में पैसा कितना महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न आता है, पैसा कहां से आता है जतिन जी? कहां से सामान्यतः पैसा हमारे पास आता है? दो रास्ते से पैसा हमारे पास आता है। पहला रास्ता, जो कुछ हम करते हैं उससे पैसा हमारे पास आता है। निश्चित तौर पर आपके विद्यार्थी कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी वो भी कुछ करने वाले हैं। हर व्यक्ति जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करता है। कुछ जॉब करते हैं, कुछ प्रोफेशन में जाते हैं, कुछ बिजनेस में जाते हैं, कुछ ना कुछ हम जरूर, कुछ आर्ट कल्चर में कुछ भी आप करते हैं, आपके एक रास्ता बनता है उससे पैसा आने का। एंड दैट इज द प्राइम सोर्स ऑफ मनी। वो पैसा आने का सबसे मूल रास्ता है। लेकिन एक और रास्ता है जतिन जी, जिसके बारे में हमारे देश में बहुत कम बात की जाती है। अब माहौल बदल रहा है, मुझे अच्छा लगता है आप जैसे युवा लोगों से बात करके। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। लेकिन मेरी जनरेशन में एक बहुत बड़ी कमी रही, जो मैं मानता हूं ब्लंडर था हमारे पार्ट पर। हमने पैसे को, महत्व को तो समझा, लेकिन जो दूसरा रास्ता है जिससे पैसा आ सकता है, उसके बारे में ना हम बात करते थे, ना हमारी समझ बनती थी। बल्कि एक तरह से हम ये समझते थे जो हम कर रहे हैं वो सही है। ये सबसे बड़ी परेशानी है पैसे के बारे में। ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, या दूसरा जो कुछ कह रहा है वो उसमें उसका इंटरेस्ट है, कोई माल बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। इसलिए हम ज्यादातर लोगों की बात ही सुनना नहीं चाहते। ये धारणा बदलनी चाहिए, क्योंकि पैसे का दूसरा रास्ता भी बनता है जितिन जी, और वो रास्ता बनता है, आपके द्वारा बचाया गया पैसा भी पैसा कमाकर देने लगे। When you saved money, start earning money for you. पैसा हम सब बचत करते हैं, बचत में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पूजा जी जानती होंगी अच्छी तरह, आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बचत करने वाली कौमों में भारतीय शुमार हैं। और विनीता जी आप तो जानते हैं, मम्मी दादी नानी किस तरह से पैसा बचाती है, दुनिया में कोई उसका उदाहरण नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तो पैसा बचाने में हम निपुण हैं, लेकिन उसके बाद उससे पैसा बनाने में सबसे पिसड्डी अगर कोई है तो वो भारतीय है। हम सबसे, ये सबसे बड़ी कमी है। वी हैव बीन बेस्ट सेवर्स ऑन द इन द वर्ल्ड, बट वी हैव बीन द वर्स्ट इन्वेस्टर, माय डियर जतिन। सबसे ज्यादा पैसे से पैसा बनाने में अगर कोई पिसड्डी कोई कौम है तो वो भारतीय है। लेकिन अब समय बदल रहा है, और मैं चाहता हूं आपका विचार बदले। मेरी पीढ़ी ने जो गलतियां की है वो आप ना करें। पैसे से पैसा बन सकता है जतिन जी, बहुत पैसा बन सकता है, उसकी लिमिट नहीं है। अपनी मेहनत से पैसा कमाने की लिमिट है विनीता जी। आपको सैलरी मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, कभी कभी डीए बढ़ जाएगा, बस इतना ही जिंदगी चलती रहेगी अगर आप जॉब में हैं तो।
लेकिन अगर आपने पैसा बचाकर उसका सही निवेश किया, उसको सही जगह लगाया, तो आप कितना पैसा बना सकती है भविष्य में, आज उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मेरा सारा विषय आजकल दूसरे सोर्स पर ज्यादा है, हाउ माई मनी कैन मेक मनी फॉर मी। मेरा पैसा मुझे पैसा कमाकर कैसे दे सकता है। तो पहली बात, पैसे, आपका पैसा पैसा कमाकर दे सकता है, लेकिन धीरेन जी, उसके लिए पहली प्री कंडीशन है, पैसा बचाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। पैसा बचाना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो पहली बात, पैसा बचाइए। उसमें 3 गलतियां मैंने की थी, मेरी पीढ़ी ने की है, धीरेन्द्र जी आप ना करें, इसलिए मैं वो गलतियां गिना रहा हूं आपको। मैंने मेरी जिंदगी के पहले 4-5 साल जो सबसे महत्वपूर्ण थे, कैजुअलनेस में बर्बाद कर दिए। अरे बचाएंगे ना, जिंदगी पड़ी है अभी तो, देखेंगे क्या, अभी तो आगे जाके बचा लेंगे। एक और विनीता जी ख्याल रहता था, आमदनी बहुत कम है, अगर 100, 200, 500 बच जाएंगे तो क्या होगा। और दूसरा और एक धारणा रहती थी कि देखेंगे आगे क्या क्या बनता है, जल्दी कोई नहीं, क्या है। ये बहुत बड़ी गलती मैंने की थी, मेरी पीढ़ी ने की थी। इसलिए मैं आप सबको पहला निवेदन करना चाहता हूं, जब से आप पैसा कमाने लगे, और जो विद्यार्थी हैं उनको जोड़ देकर कह रहा हूं, और जो यहाँ गुरुजन हैं वो तो निश्चित तौर पर आज से मान लें उस बात को, पैसा बचाइए। कभी भी ये मत सोचिए छोटा पैसा बचाने से कुछ नहीं होगा, या जब आमदनी बढ़ेगी तब पैसा बचाएंगे। ये दूसरी गलती हमने की थी। छोटा छोटा पैसा बचाइए, 100 और 500 रुपए ही आगे जाकर लाखों रुपए बनने वाले हैं, अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो पैसा शुरू से बचाइए, लगातार बचाइए। और तीसरी बात बचत के बारे में, बहुत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात है धीरेन जी, अपनी आमदनी बढ़ने के साथ साथ बचत भी बढ़ाइए। और एक थंब रूल ये कहता है, खान साहब जरूर जानते होंगे, अगर हो सके कम से कम आपको हर साल 10% अपनी सेविंग को बढ़ाना है। कोशिश कीजिए 10%, जरूरी नहीं 10% बढ़े, ज्यादा भी बढ़ सकती है, कम भी बढ़ सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 10% बचत हम हर साल बढ़ाएं। अगर इस बार हम 500 रुपए बचा रहे हैं तो अगली बार 550 बने, और तीसरे साल वो 550 का 10% इस तरह से बढ़ा करें। तो बचत के बारे में 3 छोटी छोटी बातें। अब बचत को निवेश करने के बारे में, पैसे को कहीं लगाने को हम निवेश कहते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट का एक ही मकसद है, प्रोफेसर खान जरूर जानते होंगे, माई मनी शुड आल्सो स्टार्ट अर्निंग मनी फॉर मी। मेरा पैसा भी मुझे पैसा कमाकर देने लगे जो मैंने बचाया है। और विनीता जी, मेरी जिंदगी में वो दिन नहीं आया क्योंकि हमने बहुत गलतियां की थी, लेकिन आप सबकी जिंदगी में वो दिन जरूर आएगा। मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। ऑफ कोर्स कुछ सिर्फ कहने से नहीं आएगा, उसके लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। वो दिन जरूर आएगा जब आपके द्वारा बचाया गया पैसा आपको ज्यादा पैसा कमा कर देने लगेगा, और आपकी नॉर्मल सैलरी कम हो जाएगी। ऐसा होगा, निश्चित तौर पर होगा, लेकिन कम से कम 15-20 साल लगेंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन में पेशेंस नहीं है, उन्हें तत्काल क्रिप्टो करेंसी से पैसा डबल करना है, F&O में काम करना है, पैसा बनाना है। ये बड़ा खतरनाक खेल है। कभी भी क्रिप्टो करेंसी में या F&O में मत फंस जाना, मेरी व्यक्तिगत राय ये है, बाकी आप मालिक हैं, आपकी राय सर्वोपरि है, जो आप अपने ऊपर राय डालेंगे वही सही है। इसलिए पैसे से पैसा बनता है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके लिए समय लगता है, 15-20 साल का समय लगता है। और जितना समय देंगे उतना पैसा डबल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट के बारे में एक दो तीन बातें जरूर कही जाती है। इन्वेस्टमेंट सक्सेस नीड योर पेशेंस, आपकी धैर्य की परीक्षा है। पहली बात, पैसे से पैसा बनता है लेकिन अपने आप नहीं बनता, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। उसके लिए आपको कान आंख दोनों हमेशा खुले रखने पड़ेंगे, अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहना पड़ेगा, जो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा, और उसके अनुसार अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है तो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, आप पैसा बचाकर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट का मकसद जैसा मैंने बताया एक ही है कि मेरा पैसा भी मुझे पैसा कमा कर देने लगे। लेकिन 2-3 बातें इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं जहां जरूर बेसिक एक डायनेमिक्स के बारे में, इसके बारे में बात करना चाहता हूं। पहली बात, धीरेन जी आप बताएंगे हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं या क्यों करना चाहिए?
सिर्फ पहला तो आपने बता दिया कि हमारा जो है पैसा हमारे लिए कमाए। वो कहते हैं ना कि जब मैं सोता रहूं तो भी हमारा पैसा हमारे लिए कमाता रहे। वैसे जो हम लोग जानते हैं कि कैश या फिर नियर कैश एसेट्स हम क्यों होल्ड करते हैं, तो उसके दो तीन कारण हैं। जैसे कि अ, कभी कोई इमरजेंसी में मुझे फंड की आवश्यकता हो, तो उन एक्सीजेंसीज को मीट करने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। नहीं हुजूर, ये आपने छोटा दायरा रखा है, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। जी आपको जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए धीरेन जी। और वो पैसा केवल आपकी मेहनत से कमाया हुआ से पार नहीं पड़ेगी, सफिशिएंट नहीं होगा। इस बात को बहुत समझ लीजिए आप। मेरे पास समय नहीं है, अगर आपको विस्तार से बताता कि जिन लोगों की उम्र 25 से 30 साल है धीरेन्द्र जी, आप भी उसमें शामिल है करीब करीब, उनको अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए और अपने रिटायरमेंट की जिंदगी अच्छी तरह जीने के लिए करीब करीब 10 से 12 करोड़ रुपया चाहिए। और मैं मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं, ये मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके और मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। और ये 10-12 करोड़ रुपए केवल आपकी सैलरी से पूरे नहीं पड़ेंगे। इसीलिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब इन्वेस्टमेंट की मैट्रिक्स की बात मैं बता रहा था, 3 बातें में इन्वेस्टमेंट की जा। इन्वेस्टमेंट का मेन उद्देश्य जतिन जी क्या होता है? मेरा पैसा मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा कर देने लगे। और सर रिटर्न फ्यूचर इज द ओनली स्टेबिलिटी, क्राइटेरिया और सर कि फ्यूचर मुझे स्टेबिलिटी। मेरे मेरे इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। यस ये सर। बेसिक हर आदमी यही चाहता है। यस। इसलिए कई कई बार गलत भी फंस जाता है हम्म। कि लालच में आ जाता है। लालच, और लालच सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट में सबसे खतरनाक इंडिकेटर है। हम्म। जो इन्वेस्टमेंट में लालच में फंस गया वो ना सिर्फ अपना पैसा डुबोएगा बल्कि भविष्य अपना और खराब करेगा। ऑफ कोर्स ग्रीड बुरी बात नहीं है, हम सबकी अपेक्षा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, लेकिन उसके लिए समय लगता है। तो पहली बात, द मेन पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू हैव मैक्सिमम रिटर्न। दूसरी बात इन्वेस्टमेंट की बात यह है कि मैं जो पैसा कहीं लगा रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो पैसा जब मैं चाहूं मेरे हाथ में भी रहे। ये भी तो है ना। अब जैसे अभी धीरेन जी ने बताया कि इमरजेंसी में, तो नेचुरली इमरजेंसी का मतलब क्या होगा? इमरजेंसी कहकर तो आएगी नहीं, को आपको इनविटेशन कार्ड तो भेजेगी नहीं, मैं इमरजेंसी हूँ आ रही हूँ आपके यहाँ, कभी भी जिंदगी में आ सकती है। तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा जो मैट्रिक्स है वो ये है कि जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिलेटिवली लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड का मतलब जब चाहे उसको आप मनी के रूप में बदल सकते हैं। और तीसरा तीसरा जो बात ये है, वो जो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको समझना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में समय लगता है। जल्दबाजी में अगर आप गलती करेंगे तो उसमें आपको नुकसान ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा। अब इन्वेस्टमेंट में एक बात और, तीसरी बात जो मैं आपको समझने की बात यह है, और वो डॉक्टर बबलू कुमार जी शायद मेरे से अच्छी तरह ज्यादा समझते होंगे, और वो बात यह है कि इन्वेस्टमेंट से पैसा तो बनता है। हमने भी जिंदगी में कुछ हमें आप जैसा ज्ञान तो नहीं था, आप जैसे हमारे पास कोई ना कोई बताने वाला था ना बात करने वाला था, माहौल था, लेकिन हमारे दिमाग में एक और बहुत गलतफहमी बैठी हुई थी। मैं उसे गलतफहमी अब कह सकता हूँ, शायद पहले मैं भी कन्विंस था कि वो गलतफहमी नहीं थी रीमा कुमारी जी। और वो गलतफहमी क्या थी? भैया मुझे जहां पैसा लगा रहा हूं वो सुरक्षा चाहिए, वो मेरा पैसा सिक्योर्ड होना चाहिए। और जितिन जी ये हमारी गलती थी। मैं 60 साल में अगर वो बात सोचता हूँ खान साहब तो सही है बिल्कुल, लेकिन अगर वो 30 साल का व्यक्ति ये बात सोचता है कि मैं ऐसी जगह ही इन्वेस्ट करूंगा जहां 100% सिक्योरिटी है, तो फिर रिटर्न भूल जाइए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बेसिक क्रक्स आप समझिए जतिन जी, जहां रिस्क नहीं है वहां रिवार्ड नहीं है, और जहां रिवार्ड है वहां रिस्क है। चॉइस आपकी है। फिर मैं आपको ये कहता हूं, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा रीमा कुमारी जी कि आप वहां करें यहां करें। आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि मैं अपना पैसा कहां लगाऊं। और एक ब्रॉडली ये कहा जाता है कि कभी भी अपना पैसा एक जगह मत लगाइए। ऐसा भी मत लगाइए कि पूरा पैसा एफडी में डाल दीजिए, और ऐसा भी मत कीजिए पूरा पैसा शेयर मार्केट में डाल दीजिए, ऐसा भी मत कीजिए सारा पैसा गोल्ड में डाल दीजिए, और ऐसा भी मत कीजिए सारा पैसा रियल एस्टेट में डाल दीजिए। यू ट्राई टू डेवलप ए बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
एक इन्वेस्टमेंट का गुलदस्ता बनाइए, अलग अलग जगह कुछ कुछ पैसे डालिए, कुछ पैसे निश्चित तौर पर ऐसी जगह डालिए, बल्कि मैं तो कहूँ रीजनेबल ऐसी जगह डालिए जहां सुरक्षा पूरी है। सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, वहां कोई रिस्क नहीं है। लेकिन विनीता जी, वहां रिवार्ड भी नहीं है। विनीता जी बड़ी खुश होती हैं जब एफडी करवाती हैं, जब बैंक में जब पापा मम्मी को देखा होगा आपने एफडी करवाती, कितने खुश होते हैं हम। बैंक वाला कहता है 6-7% ब्याज देंगे, बड़ा अच्छा लगता है जी। अब मैं विनीता जी का उदाहरण देकर एक बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और विनीता जी आपकी परमिशन है एक आपका नाम लेकर मैं एक उदाहरण दूं तो? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बात में आप नाराज मत होना, आप में क्या कि आपने मेरा नाम क्यों लिया, इसलिए पहले परमिशन जरूरी है। जी जी। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, और फिर केवल मैं मानने के लिए कह रहा हूं, बहुत पैसा होगा आपके पास, ऐसी मेरी सबको सब जानते होंगे आपके साथी लोग, लेकिन केवल मानने के लिए, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने किसी अच्छे बैंक में एफडी करवाई, और बैंक वाला कहता है हम आपको बैंक में क्या आपको 6% ब्याज देंगे 1 साल का। 1 साल बाद विनीता जी आपको क्या मिलेगा? 6,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, 1,000 रुपए आपका वापिस हो जाएगा। और विनीता जी बड़ी खुश होती हैं, 6,000 मिला है, घर में पार्टी हो रही है, दोस्तों को बुलाया जा रहा है, ऑफिस में सेलिब्रेशन हो रहा है, समोसे समोसे चाय की पार्टी हो रही है। क्यों भाई? मुझे 6,000 रुपए का फायदा हुआ है। विनीता जी आप सही हैं, 6,000 का फायदा हुआ है, लेकिन आप गलत हैं। और ये इन्वेस्टमेंट का खान साहब पहला पार्ट है जो आपको सबसे पहले समझना चाहिए। अब क्यों गलत है, मैं आपकी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं। 6,000 मिला, निश्चित तौर पर आप सही हैं, लेकिन संगीता जी एक दिन और रोज रोज काम होता गया, जो हम संगीता जी रोज परेशान होती है, घर में बच्चों को डांटती होंगी, घर में भी हमें कलीग्स में भी यही डिस्कशन होता है, क्या है विनीता जी? महंगाई। अरे भाई महंगाई बढ़ रही है, रोज सुबह शाम हम मध्यम वर्गीय लोगों का अगर जो हॉट डिस्कशन होता है वो ज्यादातर महंगाई पे ही होता है। और महंगाई क्या है विनीता जी? इन्फ्लेशन या महंगाई, इन्फ्लेशन इज नथिंग बट इंक्रीज इन द प्राइसेज ऑफ गुड्स आइटम और सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्यों जतिन जी? समय के साथ चीजों की, वस्तुओं की, सेवाओं की कीमतें बढ़ जाना ही महंगाई है। यस सर। तो पिछले साल जब विनीता जी ने एफडी करवाई, और विनीता जी अगर एफडी नहीं करवाती और उस 1 लाख रुपए से सोनम जी कुछ सामान ले लेती, कोई वस्तुएं खरीद लेती, कोई सर्विसेज अवेल कर लेती, तो आप बताइए क्या 1 साल बाद वही चीजें, वही वस्तुएं, वही सेवाएं विनीता जी को 1 लाख में मिलेगी? हम सब जानते हैं, विनीता जी भी ना कर रही हैं, हम सब जानते हैं वो नहीं मिलेगी। महंगाई की वजह से उनकी कीमतें बढ़ गई है। मान लेते हैं विनीता जी उदाहरण के लिए कि महंगाई की दर इस 1 साल में जब आपने एफडी करवाई 5% रही। इसके मायने क्या हुए? जो चीजें आपको पिछले साल 1 लाख रुपए में मिल रही थी, वही चीजें जतिन जी विनीता जी को 1 साल बाद 1,05,000 रुपए में मिलेगी। मैं सही हूं विनीता जी? 1 लाख। तो अब आप देखिए, आप बड़ी खुश थी जब 6,000 मिले, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है रुचि जी, 6,000 में से 5,000 महंगाई खा गई। हम ध्यान ही नहीं देते हैं, जो मिलता है उसमें खुश होते हैं, बड़ा 6,000 मिल गया हमें। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का बहुत बड़ा हिस्सा खान साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ए मेजोरिटी ऑफ योर रिटर्न इज ईटन बाय द इन्फ्लेशन। सामान्यता बात कर रहा हूं मैं। तो 6,000 में से 5,000 महंगाई खा गई। फिर भी धीरेन जी कहते हैं विनीता जी को कोई बात नहीं, आपके पास 1,000 तो बचा है। नहीं धीरेन जी, एक और परेशानी है, और वो परेशानी है कुछ सरकारी योजना, एक दो चार योजनाएं मुश्किल से, कुछ सरकारी योजनाओं को छोड़कर जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है विनीता जी, उस पे आपको टैक्स भी देना पड़ता है। कभी इनकम टैक्स है, कभी कैपिटल गेन है, और तरह की टैक्स आपको देने पड़ते हैं। और एफडी के बारे में विनीता जी अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, सबको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। एफडी पे कमाया हुआ एक एक रुपया आपकी इनकम मानी जाती है विनीता जी, और जिस इनकम टैक्स की स्लैब में आप आती है उतना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और ये रूल आज से नहीं है खान साहब, पहले से भी था, लेकिन हमारी पीढ़ी को एक और दिमाग में, हमारे बैक ऑफ माइंड एक हमें कॉन्फिडेंस था, अरे छोड़ो ना, इनकम टैक्स वाला कौन सा बोरा बैग लेके पैसा इकट्ठा करने आएगा। तो ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट पर धीरेन जी जो इंटरेस्ट मिलता था उसको वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। लेकिन विनीता जी
टेक्नोलॉजी ने बहुत फायदे दिए हैं, कुछ नुकसान भी दिए हैं। और एक नुकसान ये दिया है कि अब सारा फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेट हो गया है। जो ही विनीता जी के खाते में 6,000 रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ संगीता जी, इनकम टैक्स वालों को ऑटोमेटिकली पता पड़ जाता है। अब विनीता जी छुपा नहीं सकती उसको, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और अगर आपने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई और नहीं शो किया और बाई चांस इनकम टैक्स के नोटिस में आ गया और आपको अगर नोटिस मिल गया, तो आपके पास कोई चारा नहीं है, वो टैक्स भी देना पड़ेगा और पेनल्टी और देनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं विनीता जी वैसे 30% ब्रैकेट में आती होगी इनकम टैक्स के, लेकिन फिर उदाहरण के लिए मान लेता हूं आप 20% में आती हैं, तो 6,000 पे आपको 20% टैक्स भी देना पड़ेगा। जतिन जी कितना हो गया 20%? 1,200 रुपए। अब आप देखिए विनीता जी ने बड़ी खुश थी जब 6,000 मिले और पार्टी और 500-700 रुपए में पार्टी में और खर्च कर दिए। 6,000 में से 500 इनकम महंगाई खा गई, 1,200 इनकम टैक्स वाले ले गए, 500-700 रुपए पार्टी में चले गए। विनीता जी कुछ बचा आपके पास? पार्टी का पैसा अलग छोड़ दीजिए, इन्फ्लेशन और टैक्स लगाकर ही 6,200 बनता है और आपको 6,000 मिले थे, तो लिटरली आपको कुछ भी नहीं मिला। तो जो 6,000 मिला जितिन जी, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दैट इज योर नोशनल रिटर्न, दिखावे का रिटर्न है। जब भी आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, धीरेन्द्र साहब आप तो कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, आप जानते होंगे, महंगाई हटाइए, टैक्स हटाइए, फिर कुछ बचता है तो वो रियल रिटर्न है। और एक बात और ध्यान रखिए, केवल रियल रिटर्न ही आगे जाकर वेल्थ क्रिएट करता है, अदरवाइज केवल हम पैसा इकट्ठा करते हैं। ओनली द रियल रिटर्न गोज इन क्रिएटिंग वेल्थ फॉर यू। और वेल्थ क्या है जतिन जी? अगर वेल्थ क्रिएशन की हम बात करते हैं तो विनीता जी, और मैं बड़ा विद्यार्थी जैसी बात कर रहा हूं, आप जैसे गुरुजन जैसी बात नहीं कर रहा हूं। मेरी समझ में वेल्थ का मतलब वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असेट्स हैं धीरेन्द्र जी, जिनकी कीमत भविष्य में बढ़ने की संभावना है, जिनसे हम भविष्य में हमें रिटर्न मिलेगा और जिनको भविष्य में हम मोनेटाइज कर सकते हैं, हम उसको पैसे में बदल सकते हैं। यही तो वेल्थ है। और वेल्थ क्रिएशन से ही प्रॉस्पेरिटी बनती है। तो पहला मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट पे जब तक हमें रियल रिटर्न नहीं मिलता, तब तक विनीता जी पैसा बचाना, उसको निवेश करना एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, बेकार की एक्सरसाइज है, जो मेरी पीढ़ी ने जिंदगी भर की और हम बड़े खुश रहे थे। लेकिन आपको यह समझना चाहिए, जब तक आपके इन्वेस्टमेंट पे रियल रिटर्न नहीं मिलता, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट के वो जो पर्पस सर्व नहीं होगा जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब फिर ये कि रियल रिटर्न क्यों नहीं मिलता हमें, वो बात मैंने पहले ही बोल दी थी, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट में जो लोग केवल सुरक्षा देखते हैं, वो फिर रिटर्न की बात भूल जाए। ठीक है, तो ठीक है, एफडी करवाइए आप, बहुत अच्छी बात, मैं एफडी के लिए बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फिर आपकी अपेक्षा रिटर्न की ज्यादा नहीं होनी चाहिए पूजा जी, ये बड़ा साफ है। फिर आपकी अपेक्षा होनी चाहिए कि ठीक है, मेरा महंगाई हट रही है, टैक्स हट रहा है, कुछ बच नहीं रहा है, चलो ठीक है, बात बन रही है। लेकिन आप जैसे युवा लोगों को, जिनको मैंने बताया जतिन जी 10-12 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो केवल एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट से पैसा नहीं बनने वाला है। उसके लिए आपको बियॉन्ड एफडी सोचना पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूं सोचना पड़ेगा, इसके लिए आपको आंख कान दोनों खुले रखने पड़ेंगे। तो रिटर्न की बात मैंने समझा दी, रियल रिटर्न क्या होता है। फिर एक बात और जो मैंने बताई आपको, कि जो चीज आज आपको जतिन जी 10 रुपए में मिल रही है, 10 साल बाद वो 10 रुपए में नहीं मिलेगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं पूजा जी। अच्छा आप बताइए पूजा जी, किसी बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए करना हो आज, फिर इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए करना हो तो कितना खर्चा आ जाएगा? 2 साल का पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स है, रेगुलर कोर्स है, कितना खर्चा आ जाएगा? सिर्फ 20 से 25 लाख। हाँ, 20 लाख तो आप मान रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं जतिन जी, 20 लाख खर्चा आ जाएगा। यस पूजा जी सही बोल रही हैं, लेकिन पूजा जी एक बात ध्यान रखिए, आप भी जतिन जी और ज्यादातर जो युवा लोग मैं देख रहा हूं, आज 20 लाख खर्चा आता है एमबीए डिग्री का।
और जब पूजा जी 25 साल बाद आपके बच्चे एमबीए करने जाएंगे, कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, जो एमबीए की डिग्री आज 20 लाख रुपए में मिल रही है संगीता जी, 25 साल बाद वही एमबीए की डिग्री कम से कम 2 करोड़ रुपए में मिलेगी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हम ध्यान ही नहीं देते। होगा ना, देखेंगे, करेंगे सब। और फिर एक और हमारे सबसे बड़ी परेशानी ये है जतिन जी, अरे जो भाग्य में मिलेगा सब मिलेगा, जो भाग्य में वो कहीं नहीं जाएगा। ये भाग्य ने हमें बहुत बर्बाद किया है। मेरा अपना आकलन ये है, सोचता मैं गलत हूं पूजा जी, भाग्य जैसी चिड़िया कुछ भी नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। केवल एक चीज पुरुषार्थ और मेहनत आपके हाथ में है, और उससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट से भी बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो भाग्य को हमेशा साइड में रखिए, जो है वो अलग, मैं नहीं कहता भाग्य होता है। अब जैसे सबने इन्वेस्टमेंट किया, किसी का इन्वेस्टमेंट पे 12 लाख का फायदा हुआ, किसी को 8 का हुआ, किसी को 6 का हुआ, वो आप कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा उसको थोड़ा एक एक एडवांटेज मिल गया। लेकिन अल्टीमेटली जो मैं कहना चाहता हूं, केवल आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी ही धीरेन्द्र जी आपको इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न दिला सकती है। तो भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिए, पहली बात। तो मैं जो बात कर रहा था कि हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 20-25 साल बाद जो मुझे खर्चा करना है उसके लिए कितना पैसा चाहिए। अब जतिन जी मुझे पता नहीं है आपके यहाँ पेंशन है या नहीं है, आ, और अगर पेंशन है तो एक बात धीरेन्द्र जी आप भी इस चीज को मानेंगे कि हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से जो सरकारी और राज्य और केंद्र सरकार या सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की संख्या पूजा जी 4-5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब 130-135 करोड़ लोगों की पेंशन नहीं है। तो उनको मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी के बारे में आज से सोच लीजिए। अभी से कुछ पैसा रिटायरमेंट के लिए भी इकट्ठा करने की सोचिए। और जतिन जी एक मैं उदाहरण देकर आपको थोड़ा डराना चाहता हूं, और डराने का मकसद डराना नहीं है, आपको संबल देना है, आपको साहस देना है कि हम आगे की लड़ाई में हम अच्छी तरह उसके लिए अपने आप को तैयार करें। Exactly, sir. मान लीजिए जतिन जी आपकी उम्र 30 साल है, आसपास ही होगी आपकी, और आप कहते हैं, एक मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं, कि आप कहते हैं कि मेरा घर का खर्चा मैं करीब करीब 30,000 में मैनेज कर लेता हूं। नॉर्मल बात कर रहा हूं, मध्यम वर्ग, बेसिक खर्चे की बात कर रहा हूं। लेकिन जतिन जी आपने कभी सोचा नहीं होगा, 30 साल बाद जब आप रिटायर होंगे नमिता मैम, जब जो इनका घर का खर्चा 30,000 में चल रहा है, 30 साल बाद उसी घर खर्च के लिए जतिन जी कम से कम 2 लाख रुपया हर महीना चाहिए, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और ये मैंने धीरेन्द्र साहब 6% इन्फ्लेशन ब्रॉडली मैंने माना है ये, और कभी 6 भी रहा है, कभी 8 भी रहा है, कभी 10 भी रहा है, आप जानते हैं एवरेज अगर बात करें। तो जतिन जी 30 साल बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे, जिस दिन आप रिटायर होंगे कॉलेज में बहुत बड़ी पार्टी होगी, अच्छा फेयरवेल होगा, सब लोग झूठी सच्ची आपकी तारीफ करेंगे, और फिर आपको घर छोड़ जाएंगे, फिर आपका और कॉलेज का कनेक्शन खत्म। और जो सब कनेक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि हर महीने जो आपको सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती थी वो आना बंद हो जाएगी। लेकिन फिर सैलरी आना बंद हो गई, 2 लाख रुपया पर मंथ अभी तो स्टार्ट हुआ है नितिन जी 60 साल की उम्र में। जब आप 17 साल के हो जाएंगे, यही 2 लाख बढ़कर 2.5 लाख पर मंथ हो जाएगा। और जब आप 80 साल के हो जाएंगे, यही 2.5 लाख बढ़कर 3 लाख हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, यह यथार्थ है जिंदगी का। आपने देखा होगा हमारी भारतीयों की एवरेज आयु पूजा जी बढ़ रही है। एवरेज एज ऑफ इंडियंस इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। धीरेन्द्र जी जानते हैं, when we got independence in 1947, average age of Indian was only 47 years. Dhiren ji, that had now risen to 71 years. 71 साल हो गई है। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है जितिन जी कि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को 15, 20, 25, 30 साल जीना है। अच्छी बात है, जिए, स्वस्थ रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीने के लिए पैसा तो चाहिए ना जितिन जी, कहां से पैसा आएगा? और मेरी अपनी सोच समझ ये है, आपके बच्चे कितने भी सामर्थ्य रखते होंगे, कोई भी माँ बाप कभी भी बच्चों से पैसे लेकर खुश नहीं है। आप भी जब पेरेंट बनेंगे, बड़े बनेंगे, तो शायद ये आपकी धारणा बनती जाएगी। तो आप, लेकिन उसके अगर आपकी वो इच्छा है तो फिर हाथ में पैसा तो होना चाहिए।
तो रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा होना चाहिए, एक थंब रूल मैं आपको बताना चाहता हूं धीरेन्द्र जी, और वो थंब रूल ये है, योर रिटायरमेंट कॉर्पस शुड बी नॉट लेस देन 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट। जब आप पहले साल की रिटायरमेंट के खर्चे, वार्षिक खर्चों को 20 गुना कम से कम आपके पास होना चाहिए। और जतिन जी, अभी मैंने कितना बताया आपको, पर मंथ खर्चा करीब करीब 2 लाख रुपया 60 साल की उम्र में, 12 से गुना कर दीजिए कितना हो गया, 24-25 लाख रुपया। 24%। इसको 20 से गुना कर दीजिए कितना हो गया, 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपया केवल रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के लिए चाहिए, अगर पेंशन नहीं है तो। क्योंकि थंब रूल ये कहता है धीरेन्द्र जी कि अगर आप 6% विड्रॉ करेंगे, मतलब अगर आपको 6% भी ब्याज मिलता है उसपे, तो आपको करीब करीब 25-30 लाख रुपए आपको रिटर्न आएगा 5 करोड़ का। उससे आप अपना खर्चा आराम से चला पाएंगे। तो इसलिए 5 करोड़ रुपया रिटायरमेंट के लिए चाहिए पूजा जी। 4-5, अगर 2 बच्चे हैं तो 4-5 करोड़ रुपया बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। फिर देश में घूमना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, और बहुत चीजें हैं। करीब करीब 10-12 करोड़ रुपया एक मध्यम वर्गीय आदमी को जिसकी उम्र करीब करीब 30 साल है, उसको आवश्यकता बनेगी। कहां से आएगा जितेंद्र धीरेन्द्र जी? आप अपनी सैलरी का टोटल लगा लीजिए, अपने खर्चे निकाल लीजिए, लिटरली कुछ भी नहीं बनता है। तो 10-12 करोड़ लाने के लिए एक ही रास्ता है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, शुरू से कीजिए, लगातार कीजिए। और इन्वेस्टमेंट का एक और थंब रूल मैं आपको आखिरी में बताना चाहता हूं, और वो रूल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड धीरेन्द्र साहब जानते हैं, खान साहब सर भी जरूर जानते होंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है। और इन्वेस्टमेंट में अगर धीरेन्द्र जी हम बात करें, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक छोटा सा वादा है जो अपने आप से करेंगे हम। अभी नया साल चालू होने वाला है धीरेन्द्र जी और जतिन जी, मैं चाहता हूं एक छोटा सा वादा आप अपने आप से करें। करेंगे आप? मैं आप जरूर सभी से कहना चाहता हूँ, कितने लोग जरूर हैं जो सर। करेंगे? ईमानदारी से वादा भी बताऊंगा आपको, बिगर वादा आपके पहले वादा तो बताइए फिर सोचेंगे। तो पहले मैं वादा बता देता हूं। एक छोटा सा वादा आपको अपने आप से करना पड़ेगा कि जब जब मेरे इन्वेस्टमेंट पर मुझे रिटर्न आएगा, स्वाभाविक है, जब आप पैसा बचाएंगे खान सर, कहीं लगाएंगे तो आपको रिटर्न आएगा ही आएगा, आज निकल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। जब भी मेरे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आएगा, फिर चाहे रिटर्न 500 रुपया हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 5 लाख हो, आई विल नेवर कंज्यूम दैट रिटर्न। उस रिटर्न को कभी मैं खर्च नहीं करूंगा। व्हाट आई विल कीप री इन्वेस्टिंग इट, उसको री इन्वेस्ट करता रहूंगा। जब जब मुझे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा, उसको मैं री इन्वेस्ट करूंगा, और एक बार नहीं करूंगा, अगले 15-20 साल तक लगातार करूंगा। ये कितने लोग हैं जो वादा निभाएंगे? हाथ उठाइए ईमानदारी से। जतिन जी आप बताइए। आप ये नमिता मैम ने हाथ उठा दिया है। नहीं नमिता मैम, मैंने इसलिए आपसे कह रहा हूं, अभी नया साल आने वाला है। जब नया साल आता है, हर आदमी अपने से 10-20 प्रोमिजे जरूर कर लेता है। इस साल मैं ये जरूर करूंगी, इस साल मैं ऐसा करके मानूंगी, इस साल तो मैं करना ही करना है मुझे। लेकिन 31 जनवरी आते आते वो सारे रफू चक्कर हो जाते हैं वादे। ऐसा वादा मैं नहीं चाहता हूं आपसे, इसलिए मैंने कहा कि हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लीजिए। क्योंकि ये वादा आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान है कि हाँ हाँ करेंगे, करना चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। और ये वादा फिर दोबारा बोल रहा हूं धीरेन्द्र साहब, ये वादा है कि जब जब मेरे इन्वेस्टमेंट पर मुझे रिटर्न मिलेगा, मैं उस रिटर्न को कंज्यूम नहीं करूंगा, उस रिटर्न को री इन्वेस्ट करता रहूंगा। और ऐसा एक बार नहीं करूंगा, अगले 15-20 साल तक लगातार करूंगा। जितिन जी, अगर आपने ऐसा कर लिया, फिर कह रहा हूं आसान नहीं है, और फिर कर रहा हूं इसका ऑप्शन भी नहीं है। अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है और बहुत पैसा बनाना है, तो इसका दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपके पास 15-20 साल बाद इतना पैसा होगा जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये वादा मुश्किल क्यों है नमिता जी? आपने हाथ उठा दो था, लेकिन वादा मुश्किल क्यों है? वादा इसलिए मुश्किल है, आपने वादा कर लिया, ईश्वर करे 5 साल बाद किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट है और आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है। आपका वादा क्या है कि 5 लाख मुझे री इन्वेस्ट करना है। ये वादा आपने किया है ना, लेकिन पूरा परिवार आपके पीछे पड़ जाएगा। आपका वादा साइड में रखो, 5 लाख का फायदा हुआ है, स्विट्जरलैंड ही चलना है। परिवार की अपनी अपेक्षाएं, मैं वो नहीं कहता। उस टाइम ही आपको, अगर आपको वादा याद रहा,
और याद रहना कुछ अलग बात है, उस पे अड़े रहे तो 15-20 साल बाद आपको इतना पैसा आपके हाथ में होगा जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दैट इज वाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वन ऑफ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य कहलाता है। जितना अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को रीप्लग करते जाएंगे, री इन्वेस्ट करते जाएंगे, उतना ही पैसा बहुत तेजी से डबल होगा। इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में जरूर अपनाइए। अब आखिरी में मैं थोड़ा सा बात, एक्चुअली मैं 2 घंटे चाहता था, लेकिन मेरी अचानक एक मीटिंग आ गई, इसलिए मुझे बड़ा शॉर्ट करना पड़ रहा है, वरना आपको विस्तार से और मैं बातें करता। लेकिन अगली बार हम आपके यूनिवर्सिटी में फिजिकली आने का प्रयास करेंगे, और उसके तब मैं खान साहब की परमिशन चाहूंगा कि हम एक बड़ा प्रोग्राम आप सबके साथ वहां करें, और जब हम विस्तार से 2 घंटे 4 घंटे इस विषय के बारे में और बात करें। तो अब पैसा कहाँ लगाए? पैसा लगाने के कई रास्ते हैं। पहला रास्ता जो सबसे सुगम माना जाता है, और मेरी पीढ़ी के लिए वही रास्ता था, वो था सरकारी योजनाएं। हमारे टाइम में अगर जितिन जी पापा मम्मी से जाके आप बात करोगे तो 2 ही चीजें हम बात किया करते, भाई पैसा कहाँ लगाना है, तो बड़े फक्र से कहा करते थे, खान साहब एफडी करवा रखी है या एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है। और बदकिस्मती से दोनों ही इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसा मैंने एफडी के बारे में तो आपको बता ही दिया। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। मैं आपको जतिन साहब एक बार और कहना चाहता हूं, आप सब युवा लोग हैं, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। और हमारे देश में इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के रूप में बेचा जाता है। माफ करना अगर कोई इंश्योरेंस के एजेंट या बैठा हो तो उससे माफी चाहता हूं मैं। मेरा कोई मंतव्य नहीं है कि उनकी प्रोफेशन पे मैं कोई कुठाराघात करूं, लेकिन मेरा अभी जो लक्ष्य है वो आप हैं, इसलिए मैं आपसे खुलकर बात कर सकता हूं। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से पहले लेना जरूरी है। मैं उसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूं पूजा जी, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्वेस्टमेंट। और इंश्योरेंस का धीरेन्द्र साहब एक ही मकसद है, और वो मकसद है मेरे परिवार को मैं एक सुरक्षा दे रहा हूं, एक सिक्योरिटी डेवलप कर रहा हूं कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, मैं मेरे परिवार के साथ कल नहीं होता हूं, तो मेरे परिवार को इतना पैसा मिले कि कम से कम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके जो उनकी जो खर्चे हैं वो चलें, उनको आर्थिक परेशानियां कम से कम हो। बाकी इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स तो आती हैं, वो अलग बात है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम से कम आए। यही इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस का पर्पज है। और इंश्योरेंस जतिन जी कभी भी मैं मेरे लिए नहीं लेता हूं, मेरे परिवार के लिए लेता हूं, मेरे के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए लेता हूं। और जो विशेष तौर पर जो सिंगल अर्नर हैं परिवार में, अकेले कमाने वाले हैं, उनको मैं बहुत जोर देकर कहता हूं, अपना पर्याप्त इंश्योरेंस लीजिए, एडिक्वेट। हमने भी इंश्योरेंस लिया था, हमें याद है, पता नहीं खान साहब को याद होगा नहीं, या हमने इंश्योरेंस लिया था, 1 लाख का इंश्योरेंस लिया था 35-40 साल पहले जतिन जी। और सच कहता हूं, जब इंश्योरेंस एजेंट ने हमें बताया कि अगर आप जिंदा रह गए 30 साल बाद में तो आपको 3.5 लाख मिलेंगे, और अगर निकल गए बीच में तो आपके परिवार को 1 लाख कुछ बोनस वगैरह मिल जाएगा। और नमिता जी उस रात में सो नहीं पाया था, सच बोल रहा हूँ, बच्चा था बिल्कुल। 3.5 लाख मुझे मिलेंगे अगर मैं जिंदा रह गया तो, क्योंकि 40 साल पहले 3.5 लाख का मतलब 3.5 करोड़ के बराबर थी आज का। और वो गलत नहीं था, मुझे 30 साल बाद धीरेन्द्र साहब 3.5 लाख मिले, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी ऊपर चले गया था। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसको बहुत कुछ कहता। क्यों? कि 3.5 लाख की वैल्यू 30,000 भी नहीं रही। आप हमेशा वैल्यू में उसको देखिए। तो इंश्योरेंस एडुकेट होना चाहिए। और जतिन जी, इंश्योरेंस एडुकेट की डेफिनेशन क्या है? योर लाइफ इंश्योरेंस कवर शुड बी मिनिमम 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। जो आपकी सालाना आमदनी है कम से कम 10 गुना तो होनी चाहिए, आइडियली 20 गुना होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी सालाना आमदनी 25 लाख रुपया है जतिन जी, तो आपका कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। कम से कम बोल रहा हूं ये, आइडियली इट कैन बी इवन 20 टाइम्स। और
वो मनी बैक और एंडोमेंट से नहीं हो सकता रितु जी। हमारे टाइम केवल मनी बैक और एंडोमेंट हुआ करता था, लेकिन आपके टाइम एक नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में आजकल है, आप नाम नोट कर लीजिए, उसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए आप। उसका नाम है टर्म इंश्योरेंस, TERM, टर्म इंश्योरेंस। बहुत सस्ते पैसे में बहुत बड़ा इंश्योरेंस हो जाता है। अगर आप जतिन जी जैसे आपकी उम्र 25 से 30 साल है, तो आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल सकता है केवल 500-600 रुपए महीने की किस्त में, प्रीमियम पे। लेकिन अगर आप मनी बैक और एंडोमेंट लेने जाएंगे, तो उसके लिए करीब करीब 40-50 हजार रुपया हर महीना देना पड़ेगा, जो ज्यादातर लोगों की सामर्थ्य नहीं होती है। इसीलिए केवल टर्म इंश्योरेंस लीजिए। आपका इंश्योरेंस का एजेंट कभी ये नहीं बताएगा आपको, वो आपको मनी बैक और एंडोमेंट भी बताएगा, क्योंकि उसमें उसको कमीशन ज्यादा मिलता है। सीधी सी वो अपनी प्रोफेशन कर रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसको कोई वो गलत नहीं है। लेकिन हम अपनी समझ से वो चीज लेनी चाहिए, तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए। एक और बात बताना चाहता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए। अब नमिता जी कहेंगे, अरे साहब आप हेल्थ इंश्योरेंस भी दिलवा रहे हैं, पहले लाइफ इंश्योरेंस दिलवा रहे थे, दोनों में एक ही तो है, क्या फर्क है? नहीं, दोनों अलग अलग है नमिता जी। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब केवल इतना है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी परिवार को एक लमसम पैसा मिलेगा, जितना मैंने इंश्योरेंस लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब यह है कि अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी मेरे शरीर में आ जाती है अचानक, और मुझे अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो उसका सारा खर्चा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, जिससे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पज अलग है, लाइफ इंश्योरेंस का पर्पज अलग है। और संगीता जी, दोनों ही इंश्योरेंस होने चाहिए, दोनों अलग अलग बातें, मिक्स मत कीजिए कभी भी इसको। और हेल्थ इंश्योरेंस में एक नया प्रोडक्ट है, आजकल आप नोट कर लीजिए उसको भी, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसे बोलते हैं अम्ब्रेला हेल्थ इंश्योरेंस। अम्ब्रेला हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है नमिता जी, आज जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आपको ये लिवरेज होता है कि आप अपने परिवार के सारे लोगों के नाम उसमें ऐड करवा सकते हैं आपके साथ। तो अगर आपके परिवार के किसी भी मेंबर पर कोई परेशानी आती है, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस में पूरा परिवार कवर है। वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जा सकता है, अच्छा से अच्छा इलाज करवा सकता है, घर वापस आ जाए, उसको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, सारा पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी, ऑफ कोर्स अप टू द लिमिट ऑफ इंश्योरेंस कवर। अब जैसे हॉस्पिटल में 20 लाख का खर्चा आया और आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया, तो 10 लाख तक पेमेंट होगा। तो लेकिन हेल्थ, फिर दोबारा बोल रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दोनों बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट से पहले दोनों चीजें लीजिए, ये मैं युवा लोगों को खान साहब बहुत जोर देकर कह रहा हूं। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की सोचिए। तो अब आखिरी में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हैं। पहले सरकारी योजनाएं हैं, और उसमें खान साहब मुझे एक योजना बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं आपने कितने लोगों ने वो कर रखी है, नहीं कर रखी है। धीरेन्द्र साहब ने कर रखी है, नहीं कर रखी है, और वो विनीता मैम कहाँ गई मुझे दिख नहीं, उन्होंने की है, और बाकी जो लोग हैं इन्होंने की हुई नहीं की। अगर नहीं की है, तो धीरेन्द्र साहब कुछ आपने गलती की है, इस गलती को जल्दी से जल्दी सुधार दीजिए। उस योजना में अपना खाता जरूर खोल लीजिए। और मैं जो आपके स्टूडेंट्स को भी कहना चाहता हूं, जो ही वो जॉब करने लगे, अगले 6 महीने में, फर्स्ट 6 मंथ में ही उस योजना में अपना खाता खोल लीजिए। उस योजना का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मैं मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं खान साहब, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। और जो सबसे बड़ी इसकी ब्यूटी ये है धीरेन्द्र साहब, ये टैक्स एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगता। जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पे टैक्स नहीं लगता। ये 15 साल की योजना है, ये लिटरली क्लोज एंडेड स्कीम बोलते हैं इसे। 15 साल तक आपको हर साल 1.5 लाख रुपया डालना पड़ेगा। 15 साल के बाद भी आप 5-5 साल के, 15 साल के बाद भी नहीं जाने दो, 15 साल के बाद 5-5 साल इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं खान साहब। और एक्सटेंड करना ही चाहिए, कम से कम 3 बार एक्सटेंड करना चाहिए 15 साल के बाद। मान लीजिए जतिन जी कहाँ गए, जतिन जी के मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं कि मान लीजिए जतिन जी ने 30 साल की उम्र में एक PPF अकाउंट खोला, हर साल 1.5 लाख रुपया इस अकाउंट में डाल रहे हैं, आज 7.10% ब्याज है। जब 45 साल की उम्र हो जाएगी, और जतिन जी एक बात और ध्यान रखना, 1.5 लाख रुपया नमिता मैम, इसको नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू में डालना है। कोशिश करना पहले पैसा इकट्ठा कर लें, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में डालिए। और
हर साल डालिए, तो 15 साल बाद आपके पास पैसा बनेगा 43 लाख रुपया। अब मैं आज की रेट ऑफ इंटरेस्ट से खान साहब इनको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, लेकिन जतिन जी को मैंने बताया वो समझदारी होनी चाहिए। जब 45 साल की उम्र में ये 30 साल में चालू किया, 45 साल की उम्र हो गई, 15 साल पूरे हो गए, इस खाते को बंद नहीं करना है। 45 साल में और 5 साल के लिए बढ़ा दीजिए और 1.5 लाख रुपए डालते रहिए। 50 साल में फिर 5 साल के लिए बढ़ा दीजिए, 1.5 लाख रुपए डाल। ये 5 साल से कम के लिए नहीं बढ़ता है और न 5 साल की ज्यादा के लिए बढ़ता है, इसलिए आपको 5-5 साल बाद बढ़ाना पड़ेगा। फिर 55 साल में एक बार और बढ़ा दीजिए, 1.5 लाख रुपए डालते रहिए। पूजा जी, जब जतिन जी 60 साल के हो जाएंगे, उनके पास पैसा बनेगा 1,72,00,000 रुपया। पहले 15 साल में केवल 43 लाख रुपया बना था, अगले 15 साल में ये बढ़कर 1,72,00,000 बन गया। कैसे बन गया नमिता जी? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ब्याज पे ब्याज मिलता गया, रिटर्न पे रिटर्न मिलता गया, वो उसमें ऐड होता गया और फिर रिटर्न पे भी रिटर्न मिलता गया। तो पीपीएफ सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मेरा अपना मानना है, पता नहीं आप कितने सहमत होंगे, खान साहब कितने सहमत होंगे, हर मध्यम वर्गीय परिवार का पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए। और ना सिर्फ आपका होना चाहिए, आपके पति का होना चाहिए, आपकी पत्नी का भी होना चाहिए, आपके बच्चों का भी खुला सकते हैं, अगर आपकी सामर्थ्य है 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। दूसरी एक और सरकारी योजना मैं पहले बताना चाहता हूं, बाद में दूसरी बताऊंगा। एक और योजना है, वो केवल बिटियाओं के लिए है नमिता जी। जिनके घर में बेटियां हैं और बेटी की उम्र 10 साल से कम है, बबलू जी ये जरूर ध्यान रखिए आप, उसकी कंडीशन है कि ये है द गर्ल चाइल्ड एज शुड बी लेस देन 10 ईयर। 10 साल की उम्र में अगर के कम उम्र की अगर आपके घर में बिटियां हैं, आपके नहीं आपके परिवार में होगी, आपके रिश्तेदार में होगी, आपके दोस्तों में होगी, जानकारों में होगी, सबको इस योजना के बारे में बताइए। उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये बहुत अच्छी योजना है, सरकारी योजना है। आज भी सरकार इस पे सबसे ज्यादा रिटर्न इंटरेस्ट दे रही है नमिता जी, 8.20%, जो केवल सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। लेकिन सीनियर सिटीजन का 8.2% इंटरेस्ट टैक्सेबल है, यहां 8.20% इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है, टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो घर में जो बिटियाएं हैं उनका ये सुकन्या जरूर खाता खोलिए, उनके खाते में 1.5 लाख रुपए डालिए। जब बिटिया 21 साल की हो जाएगी, करीब करीब 74 लाख रुपए आपके हाथ में होगा। तो उसमें बिटिया की पढ़ाई में आपको उसका योगदान दे सकते हैं, उसके और आगे काम कर सकते हैं। अब इसके अलावा सरकारी योजनाएं मैं बताऊं, केवल नाम बताऊंगा, समय नहीं है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, नेशनल सेविंग, आप नोट कर लीजिए, डिटेल आप गूगल पे ले सकते हैं। उसके बाद है किसान विकास पत्रा, किसान विकास पत्र। तीसरी योजना का नाम है आरबीआई बॉन्ड्स। रिजर्व बैंक भी बॉन्ड इशू करती है नमिता जी, रिजर्व बैंक भी समय समय पर बॉन्ड, हमेशा बॉन्ड उसके ओपन रहते हैं। और दो बॉन्ड की दो कैटेगरी होती है, टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड और टैक्सेबल बॉन्ड्स। टैक्सेबल बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती है, करीब करीब 7.8 से 7.89% आज की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा आप डाल सकते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद में भारत सरकार भी आपसे लोन लेती है, जतिन जी को, धीरेन्द्र साहब को जरूर पता होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर आपसे लोन लेती है। करीब करीब 8% ब्याज सरकार आज दे रही है। पहले हमारे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए उसमें पैसा डालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन नमिता जी 2 साल पहले आरबीआई ने एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई है इस काम के लिए ही, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। उसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट इस नाम से वेबसाइट है। और अभी 2-4 महीने पहले आरबीआई ने इसका ऐप भी रिलीज कर दिया है, अब ये ऐप भी है, आप ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपनी डिटेल दे दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा जब आप चाहें इसमें डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। पर्टिकुलरली ये रिटायरमेंट प्लान के लिए अच्छा एक तरीका है, क्योंकि इसका टेन्योर ज्यादा होता है। लेकिन जो लोग लंबे टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिटायरमेंट की सोच रहे हैं या बच्चों की पढ़ाई या कुछ उसके लिए सोच रहे हैं, उसमें ये एक अच्छा एक ऑप्शन आपके पास है, तो यहां आप डाल सकते हैं। इसके बाद बैंक और पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम है, वहां भी आप जानकारी ले सकते हैं। सेकंड कैटेगरी जहां पैसा डाल सकते हैं वो है रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी,
उसके बारे में धीरेन्द्र साहब कभी अलग से क्लास ले लेंगे। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। धीरेन्द्र साहब को मैंने सुना है वो एक्सपर्ट है इस बात के, रियल एस्टेट के। तो रियल एस्टेट एक ऑप्शन है आपके पास, आप डाल सकते हैं। उसमें भी रिस्क है, मार्केट कितना चढ़ेगा। और दूसरी बात, रियल एस्टेट में धीरेन्द्र साहब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपया कम से कम चाहिए आजकल, छोटे शहरों में भी। बड़े शहरों की बात आप भूल जाइए, लेकिन आप एक ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन बता रहा हूँ निमिता जी और जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनके चेहरे पे जरूर मुस्कान आएगी, वो है गोल्ड। अब सोनम जी जानती हैं गोल्ड के बारे में, सोनम जी के बड़ा स्पष्ट विचार है कि गोल्ड के बारे में क्या बात करना, जितना गोल्ड है उतना अच्छा है। भारतीय महिलाओं का तो एक बड़ा स्पष्ट मत है। मैं पूजा कुमारी जैसी युवा महिला छात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ या प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ी सी 30, 35, 40 साल हैं उनका बड़ा साफ है कि साहब गोल्ड के बारे में बात नहीं की जाए, जितना लिया जाए उतना कम है। और ये आज से नहीं है, ये सिर्फ कई पीढ़ियों से हमारे भारतीय समाज में है। और पूजा जी, एक आपने शायद हम जब बचपन से एक बात सुनते आए हैं, खान साहब भी सुनते आए होंगे, भारत सोने की चिड़िया था। इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। और सच्चाई ये थी कि हर मध्यम वर्गीय परिवार के पास भी सोना हुआ करता था। और सोना इसलिए हुआ करता था कि सोने की ललक थी, सोने की इच्छा थी मध्यम वर्गीय परिवारों में। और नमिता जी बुरा मत मानना, भारतीय महिलाओं के बारे में मजाक में एक बात कही जाती है, केवल मजाक में लेना, इसको सीरियस मत लेना, कि धीरेन्द्र साहब भारतीय महिलाएं ईमानदारी से सच्चा प्यार केवल 2 लोगों से करती हैं, एक अपने बच्चे और एक अपनी ज्वेलरी या सोना। और हस्बैंड जिंदगी भर वो गलतफहमी में रहते हैं, कुछ हिस्सा हमारा भी है या नहीं है। वो चलो मजाक की बात अलग है, लेकिन सोना हमारे परिवारों में आज से नहीं सदियों से एक असेट क्लास माना जाता है। और खान साहब उसको बेसिकली क्या है कि उसको सुरक्षा के रूप में ज्यादा देखा जाता था। भाई सोना है हमारे पास, इमरजेंसी में काम आएगा, किसी को दिक्कत आ गई तो काम आएगा, बच्चों को देंगे तो भी उनकी सुरक्षा बढ़ेगी। लेकिन फिजिकल गोल्ड लेना नमिता जी घाटे का सौदा है, ये अब आप समझ लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं जो गोल्ड है उसे बेच दीजिए, लेकिन भविष्य में कभी फिजिकल गोल्ड मत लीजिए, क्योंकि नुकसान का सौदा है। क्योंकि अगर आप जब फिजिकल गोल्ड दोबारा बेचने जाते हैं, नमिता जी को पता होगा, ज्वेलर 35 से 40% तक मेकिंग चार्जेस कट करता है। आज आपके पास डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन अवेलेबल है खान साहब, जो पहले नहीं था। तो डिजिटल गोल्ड में जाइए, आजकल डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं आप। सिर्फ आपको एक कागज मिलेगा सरकार की तरफ से या एंटिटीज की तरफ से कि भाई आपका इतना सोना हमारे पास रखा हुआ है, वो अप्रिशिएट भी हो रहा है। और एक आपको जहमत भी नहीं उठानी पड़ रही, वरना रीमा जी अगर ज्वेलरी घर में रखती हैं तो रात को नींद नहीं आती, पता नहीं चोर उच्च के आ जाएंगे। एक और परेशानी रहती है रीमा जी का कि कहीं शादी समारोह में भी जाती हैं तो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के जाती हैं। क्यों? डर लगता है कुछ हिना-झपटी नहीं हो जाए। तो ऐसा सोना किस बात का जो घर में रखने में दिक्कत दे, पहनने में पहन भी ना जाए। तो कृपया करके इस बारे में नए विचार से सोचिए, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए अगर आप गोल्ड में इंटरेस्टेड हैं तो। आखिरी में शेयर बाजार, जहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और खान साहब, शेयर बाजार के बारे में ज्यादातर लोगों का मत ये है, गलत है लेकिन है, अरे कुछ नहीं है सर, ये सट्टा बाजारी है। ज्यादातर लोग, आज भी पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं सट्टा बाजारी है। लेकिन मैं 20 साल सेबी में रहा हूं और मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं, शेयर बाजार सट्टा बाजारी नहीं है, इट्स प्योरली नॉलेज बेस्ड मार्केट। ये ज्ञान आधारित मार्केट प्रोडक्ट है विनीता जी। और जिनको शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, उनके लिए मेरा स्पष्ट निवेदन है, 1 रुपया भी शेयर बाजार में मत लगाइए। क्योंकि ज्यादातर लोग जो आजकल शेयर बाजार में धीरेन्द्र जी लगा रहे हैं, वो भी कानाफूसी पे लगा रहे हैं। ये सो कॉल्ड टीवी में सोशल इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पैदा हो गए हैं, टीवी के बिजनेस चैनल पे एक्सपर्ट पैदा हो गए हैं, सुबह शाम आपके कान खाते रहते हैं, ये शेयर चढ़ेगा, वो शेयर चढ़ेगा। ये सब फ्रॉड है। मैं बड़ी कड़वी बात आपको मैं कड़वा शब्द यूज कर रहा हूं। उनके सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। कभी भी दूसरे के कहने पर अपना पैसा शेयर बाजार में मत लगाइए, जब तक आपको शेयर बाजार की समझ नहीं है। लेकिन समझ बढ़ाइए, मैं ये नहीं कहता मत लगाइए, पहले समझ बढ़ाइए फिर लगाइए। बिकॉज शेयर बाजार इज प्योरली नॉलेज बेस्ड मार्केट। और अगले 25 साल, पता नहीं खान साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे नहीं रखेंगे,
next 25 years are going to be golden period of Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के जतिन जी 25 साल बाद गोल्डन पीरियड रहने वाले हैं, लेकिन इस गोल्डन पीरियड का फायदा जतिन जी आपको जब होगा जब इन्वेस्टर बनेंगे। और अगर आप इन्वेस्टर नहीं बनेंगे, सही मायने इन्वेस्टर, सही मायने में अगर आपने पूजा जी इन्वेस्टर नहीं बने तो 25 साल बाद केवल आप ताली बजाते रह जाएंगे, मेरा देश आगे बढ़ गया, इस पोजीशन पे आ गया, हम वहां पहुंच गए। इंडिविजुअली यू विल गेट नथिंग। तो अगर आपको देश आगे बढ़ने का अपना हिस्सा भी चाहिए तो एक ही रास्ता है, इन्वेस्टर की बनिए, अच्छी जगह पैसा लगाइए, आपका भी फायदा होगा और आपसे, आपके पैसे से देश का भी फायदा होगा। तो शेयर बाजार प्योरली नॉलेज बेस्ड मार्केट है, लेकिन फिर कहता हूं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो शेयर बाजार में कभी भी डायरेक्ट 1 रुपया मत लगाइए। लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीका भी है म्यूचुअल फंड का, जहां पैसा लगा सकते हैं। समय नहीं है, कम से कम 1 घंटा उसके म्यूचुअल फंड के लिए चाहिए। मैं माफी चाहता हूं, अगली बार जितनी जल्दी आप मुझे सब खान साहब समय देंगे, अब अगली बार केवल म्यूचुअल फंड के बारे में 1 घंटा बात करेंगे। एक्चुअली अचानक मेरी एक बैठक आ गई, मीटिंग आ गई, इसलिए मुझे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन जितनी जल्दी आप पूजा जी और विनीता जी और जब भी जितिन जी मुझे मौका देंगे, हम बहुत जल्दी एक म्यूचुअल फंड के बारे में, और म्यूचुअल फंड से अच्छा मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। और ये बात मैं म्यूचुअल फंड बेचने के लिए नहीं करूं धीरेन्द्र जी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात मैं मेरे कन्विक्शन से कह रहा हूं, पिछले 25 साल से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि सेबी में, हमारे सर्विस रेगुलेशन में ये प्रोविजन है खान साहब कि सेबी ऑफिसर्स कांट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी मार्केट डायरेक्टली। हम शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा 1 रुपया नहीं, आज भी मेरा 1 रुपए का शेयर कोई नहीं है मेरे पास, बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशन। रिटायरमेंट के बाद भी मेरा कोई फ्लेयर ही नहीं बना। लेकिन 25 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, और इन्वेस्टमेंट का एक ही रास्ता है म्यूचुअल फंड में जो सबसे बेहतरीन है हमारे जैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए, वो है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP ये मैजिक जतिन जी, अगली बार मैं इसके बारे में बताऊंगा, माफी चाहता हूं। अभी आपके प्रश्न जरूर लूंगा मैं, अगर 2-3 प्रश्न कोई आपके हों तो आपका स्वागत है। और अगली बार जितनी जल्दी मुझे समय देंगे आप, हम एक म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल अलग से बात करेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर कहता हूं, मेरे लिए कोई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है आपको बताने का, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, और मैं चाहता हूं युवाओं का इंटरेस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में समझ बढ़ानी चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते, कोई पूछ सकते हैं आप, किसी का कोई भी प्रश्न हो अगर। कोई प्रश्न नहीं है धीरेन्द्र जी? Sir, Uttam Kumar has a one हाँ question. हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। Uttam Kumar, please unmute yourself. Yes. Hello, हाँ sir. My हाँ question is related to, sir. There's a recent spike. Is my voice is audible, sir? प्लीज गो अहेड। Yeah. Sir, there is a recent spike in cryptocurrency as we are seeing in recent trends, and it is means not regularized or not been authorized by government. But in upcoming year, as various countries like El Salvador and various countries and big men like Elon Musk are keep talking about the crypto. So when it will be, उत्तम जी, आई गॉट योर पॉइंट। माय आंसर इज वेरी सिंपल, वेरी ब्लंट। We should not invest a single penny in cryptocurrency till it is recognized and regulated by the government of India or Reserve Bank of India. yes, अभी तक क्रिप्टो करेंसी, हमारे देश की बात, आपने दूसरे देशों के नाम गिना दिए, एज फार एज माई कंट्री इज कंसर्न, क्रिप्टो करेंसी हैज नॉट येट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट क्लास। इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, 1 रुपया भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब but तक sir, गवर्नमेंट उसमें। yes, sir. But sir, जी जी, government is taking direct tax about एब्सोल्युटली, यू 30%. आर राइट, यू आर राइट। मैं आपको वही अगली बात कहने वाला था कि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, पहली बात। और मैं आपको एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कहना चाहता हूं जितिन जी, आप सभी को, केवल ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसा लगाइए जो भारत सरकार द्वारा या किसी फाइनेंशियल रेगुलेटेड द्वारा रेगुलेटेड हो। जैसे भारत सरकार द्वारा, जैसे FDs वगैरह है, RBI द्वारा रेगुलेटेड है, शेयर मार्केट है, सेबी द्वारा रेगुलेटेड है,
इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं, इरडा द्वारा रेगुलेटेड हैं, पेंशन प्रोडक्ट्स हैं, पीएफआरडी द्वारा प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 4 फाइनेंशियल रेगुलेटर हमारे देश में है और भारत सरकार है। इनके द्वारा जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट हैं उनमें ही पैसा लगाइए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज तक 9 दिसंबर को मेरा मत बड़ा स्पष्ट है उत्तम कुमार जी, 1 रुपया भी नहीं लगाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। Sir, one more question, sir. Very slight question, sir. Sir, there is a, as per being a research scholar, sir, there we are observing that there is very much surge in betting app also, sir. Means that that are legalized by the government, various digital betting app. So, sir, they are promoting their product very wisely, and what they are advertising very properly, and they are reached to third tier cities. In rural areas we are also seeing that ki betting app are grown, but share market is growing due to digital various apps, but not as frequent and not as progressive like betting apps, sir. So what can be the advertising techniques to promote share market and various kind of investment opportunities, sir? How can we? Yes, sir. Uttam Kumar ji, the program is one of the initiatives. Yes, sir. Yes, sir. This program is Wisely, one sir. of the initiatives Yes, sir. to encourage people to invest in share market, but not until you have knowledge. I again repeat it very well. बैटिंग की जहां तक सवाल है, एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसका साइकोलॉजिकल और सोशल इंपैक्ट बहुत बड़ा हमारे समाज में हो रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, एक बेसिक फंड आप समझ लीजिए, जो मैं पुराने स्कूल का हूं, जतिन जी और धीरेन्द्र साहब, आई एम फ्रॉम ए ओल्ड स्कूल। बड़ा फंडा क्लियर है मेरा, पैसे से पैसा बनता है, समय लगता है। जो भी पैसा आपको क्विक मनी आपको बनाने का दे, इंक्लूडिंग बेटिंग साइट्स, दे आर ऑल फ्रॉड्स इन माय टर्मिनोलॉजी। उनसे बचना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। बाकी मर्जी हर व्यक्ति की अपनी, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हम किसी की राय माने या ना माने, ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत वो निर्णय है। लेकिन बेटिंग ऐप बहुत खतरनाक है। मैं तो समझता हूं सरकार को भी अब इस बारे में कुछ करना चाहिए। अब टाइम आ गया है, क्योंकि इसका सोशल इंपैक्ट बहुत ज्यादा, आप तो रिसर्चर हैं इसलिए आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, इसका सोशल इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत एडवर्स इंपैक्ट आ रहा है इसका। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। यस, और कोई एक प्रश्न और किसी का? थैंक यू सर। थैंक यू। और एक आखिरी प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न है किसी का? कोई नहीं है? अच्छा धीरेन्द्र साहब, फिर आज हम इसको यहीं विराम देते हैं। लेकिन ये केवल विराम है, हम इसको थोड़ा सा पॉज देते हैं। One more question from Namita Sahib. नहीं, अब हाँ बोलिए जल्दी, लास्ट क्वेश्चन। Yes, sir. The digital gold means what? Gold bond. It's like a gold bond. हाँ, डिजिटल गोल्ड कई आजकल हमारे सिक्योरिटी मार्केट में भी डिजिटल बॉन्ड अवेलेबल है, डिजिटल बॉन्ड भी अवेलेबल है, वो गोल्ड बॉन्ड भी अवेलेबल है। वहां आप जाइए, आपको अभी एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक बंद कर दिया था, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, बहुत अच्छी स्कीम सरकार की थी, अभी वो सरकार ने बंद कर दी है, वरना वो सबसे अच्छी स्कीम थी गोल्ड की। लेकिन सरकार ने जून के बाद वो स्कीम लाई नहीं है अभी, क्योंकि उसमें बेसिकली सरकार को बहुत नुकसान हो रहा था और बहुत ज्यादा उसको देना पड़ रहा था। फॉर द टाइमिंग सरकार ने बंद की है। पहले सोवरिन गोल्ड बॉन्ड मैं हमेशा उसका जिक्र करता था, आज मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया, सरकार ने टेम्परेरी उसको बंद कर दिया है। उसके अलावा भी डिजिटल गोल्ड, आप डिजिटल गोल्ड बॉन्ड डालिए, आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे उसमें भी, उसमें आप ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा इस माफी के साथ कि मैं समय की कमी के कारण मैं वो बात नहीं कर पाया जो मैं मानता हूँ शायद करना बहुत जरूरी है, म्यूचुअल फंड के बारे में भी। तो अगली बार जब हम बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। और मैं चाहता हूं जतिन जी और प्रयास करके ज्यादा लोगों को और जोड़िए अगली बार, कि जितने ज्यादा लोग जोड़ेंगे, क्योंकि ये सामान्य एक प्रोडक्ट न्यूट्रल इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है। मेरा कोई मकसद किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, मैं फिर दोबारा आपको कह दूं, ना मैं किसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हूं ना किसी और से है। मैं सिर्फ काम ये करता हूं कि हर आदमी को जागरूक जरूर बनाया जाए कि वो पैसे के महत्व को समझे और इन्वेस्टमेंट के द्वारा पैसा बनाने का रास्ता निकाले, क्योंकि वही एक रास्ता है जब हम अपनी प्रॉस्पेरिटी एंश्योर कर सकते हैं, संपन्नता एंश्योर कर सकते हैं। और धीरेन्द्र जी, मेरी प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन मुकेश अंबानी बनना नहीं है, मेरी डेफिनेशन बड़ी साफ है, आई शुड हैव मनी फॉर माई नीड्स,
मेरी आवश्यकताओं के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। आई शुड हैव मनी फॉर माई कंफर्ट, मेरी अच्छी जिंदगी जीने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। आई शुड हैव मनी फॉर गिविंग बेस्ट लाइफ टू माई फैमिली, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए पैसा होना चाहिए। आई शुड हैव मनी टू फॉर गिविंग बेस्ट एजुकेशन टू माई चिल्ड्रन, हर माँ बाप का ही सपना होता है। एंड आई शुड हैव मनी फॉर माई रिटायरमेंट लाइफ, दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और फिर दोबारा कहता हूं, ये भाग्य नहीं है, केवल आपका प्रयास है। भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिए। अगर आपको संपन्न होना है, प्रॉस्पर होना है, तो प्रयास कीजिए, अभी से कीजिए, लगातार कीजिए। संपन्नता निश्चित तौर पर आपके पैर छुएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और भविष्य में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your insightful words. Your expertise has provided us with essential guidance that will definitely help us in our financial planning and wealth creation efforts. Thank you so much, sir. Thank you very much. God bless you all. Thank you so much, sir. Thank you. Now I would like to invite Dr. Shweta Goyal ma'am to continue with the proceedings of the webinar. बट पूजा एक ये है इंटरेक्शन तो शायद Okay, ma'am. ब्रीफ कर रहे हैं मीटिंग शायद, तो फिर इंटरेक्शन कैसे कैसे होगा, मतलब इंटरेक्शन था ना मैडम का। Okay, हाँ, ma'am. conclude कर सकते हैं इसको। तो इसको अगली बार के लिए हम लोग पोस्टपोन Okay. करेंगे, ठीक है। Okay, so thank you all for joining this session. As we discussed in the crucial topic of financial empowerment through wealth creation, our esteemed speaker, Shri Suryakant Sharma sir, has provided us with invaluable insights on the importance of the savings, investment, reinvestment, real return, the power of compounding, and insurance. The sir has undoubtedly sparked new perspective and ideas that will definitely help us make informed strategic decisions in our financial journey. Now, I would like to extend my gratitude to our collaborators, the Indian Accounting Association, Patna branch, and the Association of Mutual Funds in India for their continued support in making this event possible. Next, I would also like to thank Professor S.P. Sahi sir, Professor B.R.K. Sinha sir, Professor Anwar Khurshid sir, Dr. Vinita Kumari ma'am, Dr. Shweta Goyal ma'am, Dr. Dhareen Kumar Pandey sir, Mr. Jatin Kumar Jaiswal sir, and the entire organizing team for making this webinar successful. We hope today's discussion inspire you all to take actionable steps towards building wealth and securing a prosperous future. Thank you once again for being a part of this enlightening session. We look forward to continue this journey of financial empowerment together. Thank you all. So now we can leave the meeting, right? And everyone who has joined the meeting, please fill the feedback form. So without the feedback form,